أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ اللہ۔ ہیں طالبان؟ کیسا چل رہا ہے آپ سبھی کا ریویژن؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب دعا ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں آپ سب، اور ہر مشکل پریشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیوں میں اسے بدلتے جائیں، اور خاص رحمت اللہ کی دنیا میں بھی اپنے خاص بندوں پر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سبھی کو، ہم سبھی کو اپنے خاص بندے بنا لیں، آمین یا رب۔ اوکے چلیں، آج الحمدللہ ہم لوگوں کی جو حدیثوں کا جو پارٹ تھا وہ لگ بھگ لاسٹ میں ہم نے سارے ہی لے لیے تھے اکٹھا، اور وہ چیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب صرف آپ لوگوں کا فاسٹ ریویژن چلے گا، کیونکہ رولس آلموسٹ آپ سبھی کو آ گئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کو رولس میں کہیں پر سے بھی کوئی بھی ڈاؤٹ کوئی تلاوت کے دوران آپ لوگوں کو ایسی بات مل جاتی ہے جو کہ آپ کو ایسے لگے کہ یہ کیا ہے، تو بالکل آپ لوگ بار بار پوچھیں، آپ سبھی کا بہت ویلکم ہے۔ اور اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ میں نے ابھی ایک سوال کیا تھا دوبارہ کیسے پوچھوں، ٹھیک ہے، کیونکہ کورس ختم ہونے کو ہے، ابھی ہم سب ساتھ میں ہیں۔ ویسے آپ لوگ ہمیشہ ویلکم ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی میسج کریں کسی بھی ٹیچر کو، اور زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی پارٹ تجویز سے ریلیٹڈ اٹکے تو آپ سب کبھی بھی ہم لوگوں کو میسج کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ایک ابھی آپ لوگوں کا ٹائم ہے، اسٹوڈنٹ ہیں اور سیکھ رہی ہیں ڈیلی، یعنی کہ ایوری کلاس میں ملاقات ہو رہی ہے، تو اس وقت تو بالکل بھی نہ چھوڑیں اس اپرچونٹی کو کہ مجھے پوچھ لینا چاہیے تھا، میں سمجھ لیتی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آج انشاءاللہ رو میم ساکن ہم لوگ نے لے لیا ہے، اور آج صرف رو کے ہی رول ہم لوگ ریوائز کریں گے انشاءاللہ۔ بس السلام علیکم ورحمۃ باقی اللہ آپ لوگ السلام علیکم جی بتائیں کچھ ہوتا استاذہ لام قمری سے اسٹارٹ کریے گا۔ لام قمری ہے، رہ گیا تھا ادھر، جی ہم نے اس کو جمع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لام قمری، لام جلالہ، ٹھیک، اوکے، لام جلالہ، لا شمس قمری اور رو۔ شبدہ بھی ہم لوگ آگے گئے ہیں، اس کا بھی دیکھیے گا کیا ریوائز ہوا ہے کہ نہیں۔ اوکے، قمری شمسی پڑھنے کے لیے ہم لوگوں کو حمزۃ الوصل سمجھنا پڑا تھا۔ حمزۃ الوصل، وصل مانے ہوتا ہے ملانا، حمزۃ الوصل اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس کو ملا کر پڑھتے وقت نہیں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ایسی الف یا ایسی حمزہ، کیونکہ انڈیا والا قرآن میں ہم لوگ الف مدہ کے ہی شکل میں یہ والی حمزہ لیتے ہیں، الف ہی لکھتے ہیں، کوئی سائن نہیں ہوتا، جبکہ اگر الف پر سعودی قرآن ہے الف پر کوئی سائن نہیں ہو تو وہ الف مدہ کہلاتی ہے۔ لیکن انڈیا کے بعد ہمیں دیکھنا پڑتا ہے الف مدہ سے پہلے فتحہ ہے کہ نہیں، اگر ہے تو وہ مدہ ہوگا، ورنہ پھر وہ اگلے لیٹر کا حمزۃ الوصل ہوگا۔ سعودی قرآن میں وہ حمزۃ الوصل پہ صاد، وصل میں صاد آتا ہے بیچ میں، اس وجہ سے انہوں نے صاد کا ہیڈ جیسا بنا کے لکھ دیا ہوتا ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ الف مدہ نہیں ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی ملا کر پڑھتے وقت اس سے نہیں پڑھا جائے گا، لیکن جب وہیں سے شروع کیا جائے تو پڑھا جائے گا۔ اسی میں الف اور لام ملا کر کے ال، جو کہ انگلش میں میننگ دیتا ہے دا کی، آپ کو بک لکھنا ہو تو آپ عربی میں لکھیں کتابن، لیکن دا بک لکھنا ہو تو آپ لکھیں گی الکتابو، ال لگا، ٹھیک ہے۔
किसी भी नाउन के आगे ये अल लगा हुआ है, तो इसको तजवीद में पढ़ने का क्या तरीका है? तो हमजतुल वस्ल, हम लोगों का तो खैर यहाँ पर सिर्फ हमजतुल वस्ल अल के साथ वाले का फतहा लगा के पढ़ना है, यही तरीका था। लेकिन हम लोग ने टोटल ले लिए, क्योंकि इर्जिरी में देखा था हम कि हमजतुल वस्ल कभी नाउन के साथ भी आती है, कभी वर्ब के साथ भी आ रही होती है। वर्ब में आपको पता करना पड़ता है कि कहाँ पर फिर खुद से उसमें जबरदस्त पेश लगाना होता है। सऊदी के कुरान में कहीं लगे हैं, कहीं नहीं लगे हैं, कहीं हमजतुल वस्ल पे भी उन्हीं ने लगा दिए हैं। तो वो सब हमारी कमी की वजह से ही लगाए हैं, क्योंकि हम लोग के पास होने की वजह से, और लोगों के मैम आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है वो आपकी। कहीं ना आवाज कहीं से ब्रेक हो रही कोई मैम, काफी डिस्टरबेंस है। चले नेटवर्क चेंज किया है, अब बताइएगा दोबारा अगर ब्रेक हो तो इंशाल्लाह। ओके, तो बस इस वजह से उन लोगों ने कुरान में क्या कैसे सुधार लाया जाए, मिस्टेक्स ना हो, तो जो पॉसिबिलिटीज थी उन्होंने वो कर दी। लेकिन सऊदी कुरान इस तरह का बना हुआ है कि आपको थोड़ा बहुत मालूमात होने के बाद कोई मिस्टेक नहीं होती है, और आप उसे अच्छे से सीधा सीधा पढ़ सकती हैं। जी मेरी आवाज साफ हुई? जी मैम। जी अब ठीक है। ओके, बारकल्लाह फीक। चलो, मैम, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो भी बोला है, मैम थोड़ा रिवाइज करेंगे क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आया था। हाँ जी जी, हम हमजतुल वस्ल के बारे में ही बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि क्यों ऐसा इंडिया का कुरान उन्होंने बनाया है। क्योंकि तजवीद का इल्म जो है वो अब हम लोग ले रहे हैं, पहले तो वो लोग बस पढ़ लेना है ऐसे ही वाला हिसाब था ना। तो फिर उन्होंने जहाँ पे पॉसिबिलिटीज दे समझी, वहाँ पे अलिफ लिख जबर जेर पेश लिख दिए हैं। जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं अब डालेंगे तो मिस्टेक आ जाएगी, तो वो नहीं डालें। जबकि सऊदी का कुरान जो है उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही लिखा है कि थोड़ी सी चीजें बता देने के बाद आप उसे आसानी पढ़ सकते हैं, तजवीद चाहे सीखा हो चाहे नहीं सीखा हो, मिस्टेक नहीं आती फिर। जैसे कि 2-4 रूल बता दिए जाते हैं, नून कुतनी का बता दिया जाता है, सुकून क्यों नहीं लगे हुए वो बता दिया जाता है, इदगाम नाफिज बता दिया जाता है, बस उसके बाद आप तजवीद के साथ सऊदी का कुरान बगैर रूल सीखे पढ़ सकते हैं। तो सबने अपने अपने मुसहफ में, मुसहफ कुरान को कहते हैं, अपने अपने मुसहफ में कुछ ऐसी आसानियां डालते गए हैं ताकि, तो उसके लिहाज से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमजतुल वस्ल इंडिया के कुरान में कोई भी निशानी नहीं होती है, लेकिन कहीं पे उन्होंने जबरदस्त पेश डाले हुए हैं। फिलहाल आप लोगों ने अगर कहीं पे नहीं मिलेगा तो आप लोगों ने सीख लिया है कि अगर थर्ड लेटर को चेक करना रहता है, फतहा कसरा के साथ कसरा, दम्मा के साथ दम्मा, और अल के साथ फतहा, फतहा कसरा दम्मा सारे हमजतुल वस्ल पर आप लोगों को लगाने मालूम है। तो अल, ये वाले शमसी और कमरी के साथ क्या रूल है, ये कभी लाम पढ़ा जाएगा कभी नहीं। हमजतुल वस्ल तो आप लोग को मालूम है कब पढ़ी जाती है, जब वहीं से शुरू करेंगे तो पढ़ेंगे, बीच में आ जाएगी तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन लाम कब कब पढ़े जाते हैं, जब आगे कमरी लेटर आए तो उसके लाम पे उन्होंने सुकून डाला हुआ होता है, वो आपको पढ़ना है। लेकिन शमसी लेटर का लाम लिखा होता है और कभी भी नहीं पढ़ना। तो डिक्टेशन वगैरह में आपको फिर लिखना पड़ता है। अगर कोई कहे लिखे हैं अन्नारू, तो आप अलिफ के बाद नून बना के फिर नारू लिख दें, गलत होगा, अल नारू लिखना होगा, लेकिन आप उसे कहेंगे अन्नारू। चले, तो ये हमजतुल वस्ल था। तो बस शमसी और कमरी में इतना ही है कि जिस मिला के पढ़ेंगी तो हमजतुल वस्ल ड्रॉप होगा, और कमरी के लाम को पढ़ेंगे, कमरी के लाम के लिए सुकून लगा होता है, शमसी के लाम को पहचानने के लिए उसके आगे वाले लेटर पर शद्दा लगा होता है। इस तरह से आप पहचान लेंगी तजवीद में कि ये शमसी है और वो कमरी। बस इतने एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये वाला लाम कौन सा है, तो आप बता देंगी लाम अल कमरी है, या ये वाला लेटर कौन सा है, अगर लेटर हरूफ अल कमरी है, ऐसे जवाब देना होता है। ठीक, लाम जलाला, लाम जलाला, लाम यानी जलाला, अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम में लाम को लाम जलाला सुब्हान व तआला, अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम के लिहाज से इसका नाम रखा गया। तो माइक किसी का खुला है? ओके, तो बस बेहतरीन रूल आप लोगों को याद है कि इसको हैवी करना होता है या बारीक। हैवी कब करते हैं, जब इससे पहले फतहा हो। बारीक कब करते हैं, दम्मा भी हो तब भी हैवी करते हैं।
बारीक कब करते हैं, जब उससे पहले कसरा हो, और यही रूल रॉ के भी है। तो अच्छे से आप सभी को मालूम है, चाहे अल्लाह के नाम से खुद शुरू किया जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अल्लाह, फतहा से शुरू किया, हैवी होगा, चाहे उससे पहले कोई वर्ड हो उससे वो आप शुरू करें, या फिर ये भी लेटर से शुरू करें, कहीं से भी आप शुरू करेंगे फतहा कसरा। जैसे ये इसमें अल्लाह के नाम में ली को ऐड किया है, तो अल्लाह के नाम में हम सभी को मालूम है हमजतुल वस्ल होती है, तो जब ली ऐड करते हैं तो हमजतुल वस्ल लिखने में भी हटा दी जाती है। ओके, लाम कसरा ली, लिल्लज़ीना कैसे लिखा रहता है, ऐसे, है ना, तो वो इसलिए आप देख रही हैं हमजतुल वस्ल भी हट गई है, ठीक है। और कैसे लिखा गया है, ली के बाद फिर अल्लाह इसी में ऐड कर दिया है, तो लिल्लाही, यहाँ सारे वो चले गए लिल्लाह, और बारीक पढ़ा जाएगा। अल्लाहुम्मा भी अल्लाह ही का नाम है, और उसमें भी अल्लाहुम्मा में आप देखेंगे कि हुम्मा ऐड किया हुआ होता है, तो ये भी अल्लाह ही का नाम है, और इसमें आप अल्लाहुम्मा नहीं कहेंगी, अल्लाह, इसको भी सेम उसी तरीके से पढ़ेंगी। यहाँ तक कि अल्लाह लिखा था और मीम रिस्पेक्ट के लिए इसमें लगा हुआ है, अल्लाहुम्मा माने होता है अल्लाह, तो इसमें मीनिंग अल्लाह में जारी होती है, तो अल्लाहुम्मा भी कहीं लिखा हुआ हो तो वो भी इसी रूल में जाएगा, लाम जलाला ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। लाम कमरी शमसी और लाम जलाला में किसी का सवाल? शक्कर रॉ कहाँ है? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, जो है शमशी कंपनी में जो है अल लजी जो है वो शमशी है और उसमें लाम पढ़ा जाएगा, तो इसको बता दीजिए आप कैसे। अल लजी पढ़ा जाएगा तो इसमें तो लाम पढ़ा जाएगा। अल्लज़ी में जी आप कौन सा लाम पढ़ी हैं, इसके ऊपर बस ध्यान रखना है कि आप उसका अपना खुद का लाम पढ़ी हैं, क्योंकि लाम लेटर भी तो आएगा, वो कहाँ जाएगा, तो आप इसके जी इसी के लाम को पढ़ रही हैं, जो कि लाम इसका अपना है, ये वाले को नहीं जी पढ़ रही हैं, इसको पढ़ रही हैं। जी जी। अच्छा तो इसको थोड़ा सा याद करना पड़ता है, क्योंकि सेम लेटर आ रहा है ना, तो वो शमसी में जाएगा, कमरी में जाएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लें, क्योंकि लाम ही आ रहा है, तो अब बेचारा लाम ही आ जाएगा, तो अल का भी लाम आ रहा है, ये भी अपना लाम किधर जाएगा, तो उस चीज पे थोड़ा सा जी। देखना पड़ता है। चलिए, जज़ाकल्लाह। ओके। रॉ, इसको हैवी लेटर हैवी किया जाता है, लेकिन कभी ये हैवी होता है, कभी बारीक होता है, इसलिए इसको खुस्सादक्तिन क़िज़्म में नहीं डाला गया, यानी परमानेंट हैवी लेटर में इसको नहीं लिया गया। इसका चैप्टर अलग से बनाया गया है, इनको अलग से समझा जाता है, क्योंकि कभी ये हैवी होते हैं, कभी बारीक। लेवल 2 में भी इसका डिटेलिंग और आएगी, फुल चैप्टर जो है वो लेवल 2 में आएगा, इसमें कुछ शॉर्ट करके हम लोगों ने दिया है, क्योंकि एक बार में फिर इतना सारा, यहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं, फिर वहां पर थोड़ा सा और डिटेलिंग जब मिलेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे काफी आसान हम लोगों ने लिया हुआ है कि रॉ को कब कब हैवी और बारीक पढ़ेंगे, तो जब रॉ पे खुद फतहा कसरा दम्मा हो, उसमें से आपको लाम जलाला वाला रूल लेना है, कसरा के साथ बारीक, बाकी के साथ हैवी। फिर रॉ साकिन में भी आता है, अब क्या किया जाए, तो जब रॉ साकिन हो उससे पहले के लेटर्स आप देखेंगे, फतहा दम्मा कसरा में से कसरा और दम्मा, सॉरी, कसरा बारीक, फतहा और दम्मा हैवी चलेगा। अगर उससे पहले, जैसे ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये रॉ साकिन है, और यहाँ पर आप नहीं, इससे नीचे वाला है ये, तो आप देख रही हैं यार, रॉ के पहले पहले फतहा है, मीर इससे पहले वाले पे कसरा है बारीक, ठीक। अब एक और जगह पे हम लोग रॉ को खुद साकिन कर रहे होते हैं रुकते वक्त, तो उससे पहले कभी कभी साकिन लेटर भी आ सकता है, वल अस्र, ऐसी हालत में क्या करेंगी, थर्ड लेटर के मतलब आप हरकत ही देखेंगी जब भी आपको उसे साकिन करना हो, थर्ड लेटर की हरकत देखेंगी। वल अस्र में आइन पे क्या लगा हुआ है, फतहा लगा हुआ है, सौद साकिन है, रॉ साकिन है, तो रॉ को आप फतहा के हिसाब से, यानी आइन की हरकत के हिसाब से
हैवी या बारीक करेंगी। चलें, इससे पहले जो भी सिस्टर बोल रही थी उन्होंने कहा अल्लजी कहा जाता है, अल्लजी जा से नहीं लिखा जाता है, लेटर दाल होता है। तो कभी भी आप प्रोनाउंस करें तो कोशिश करें कि जो आपने सीख लिया है चाहे किसी भी वक्त आप उसे बोल रही हो तजवीज के साथ ही बोले। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम इदगाम फिर से बता दिए इदगाम, तो व्हाट इज द सही करेक्ट, करेक्ट फिर क्या लेट वर्ड है इदगाम, इकफा बता दीजिए। तो बार बार टोकते हैं, हमें खुद शर्मिंदगी हो रही होती है, लेकिन ये एक सीखने की बात है कि आप सीख लें। इदगाम गैन जब आपने सीख लिया तो इदगाम ही कहेंगी आप, और इख्फा ही कहेंगी, इख्फा, इदगाम। और भी बहुत सारे वर्ड नॉर्मली जैसे अल्लजी, आपने आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी, आप वर्ड बोल रही थी, लेकिन फिर भी जब आपने सीखा याद कर लिया अल्लजी होता है, दी। तो बेहतर अच्छी बात क्या होती है कि अल्लजी ही कहें आप, हर वक्त ही वही कहना सीख लें। तो इंशाल्लाह कभी भी हो दुआएं मांगे आप, अल्लाह नमाज पढ़ी हो कुछ भी करें उसमें इंशाल्लाह करेक्ट ही आपका फिर निकलना चाहिए। तो इसको आदत थोड़ा सा बदलेंगे इंशाल्लाह हो जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है टीचर्स ही टोकेंगी तो ये चीज भी आप लोग सीख लेंगी, इसलिए हम टोक रहे हैं बस, वरना कोई और कोई मकसद नहीं है। सीख जाए आप लोग, अच्छी बात सीखें इसलिए। चलो, तो दूसरा इसका कायदा क्या होता है, साकिन वाला था। तीसरा इसका कायदा क्या है कि कसरा, रॉ साकिन से पहले कसरा होने के बावजूद उसे हैवी पढ़ना है। दो जगहें ऐसी हैं, पहली रॉ साकिन से पहले कसरा देखें आप, लेकिन उसके बाद हैवी लेटर है, ठीक है। बस इतना याद रखें, हैवी लेटर हो, इन्हें फतह के साथ वगैरह, ये सारी चीजें बस ये ही डिटेल आपको लेवल 2 में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको जैसा भी याद हो कि कसरा के साथ ना हो, क्या लिखा हुआ, रॉ साकिन से पहले कसरा हो और रॉ साकिन के बाद सौत तो कौफ एक ही लेटर में आ जाए, जैसे आपको मालूम है वैसे ही से रखें, क्योंकि इसके ऊपर और डिटेलिंग आएगी लेवल 2 में। तो फिर आपको रॉ के पहले कसरा होने के बावजूद इसे हैवी करना होगा और आप पढ़ेंगी अल मिरु, सौद मिरु, रॉ। ओके, चौथा रूल है रॉ साकिन से पहले कसरा आएगा तभी आप उसे हैवी करेंगी। वो कौन सा, कसरा आरजी होगा। कसरा आरजी किसे कहते हैं, हमजदुल वस्ल पर हम लोग खुद लगाते हैं ना, तो जो भी चीज हम खुद लगाएं वो आरजी होती है, परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। आरजी माने टेम्परेरी। तो जब आप टेम्परेरी कसरा लगाएंगी रॉ साकिन से पहले, या इसका आसान तरीका उन्होंने याद किया था कि रॉ साकिन से पहले हमजदुल वस्ल देखें एट एनी रेट, आप उसे हैवी ही पढ़ेंगी, यानी दम्मा और फतह पर तो ऑलरेडी वो हैवी ही होगा, कसरा भी होगा जब भी। वजह क्या होगी, रॉ साकिन से पहले हमजदुल वस्ल, ठीक। तो दोनों में से आप कुछ भी कहेंगी सही जवाब होगा कि रॉ साकिन से पहले हमजदुल वस्ल आएगी तो हम उसे हैवी करेंगे, रॉ साकिन से पहले आरजी कसरा लगाया जाएगा तब भी वो हैवी होगा, तो वो आरजी कसरा हमजदुल वस्ल पर ही लगता है। दोनों जवाब सही हैं। तो आप पढ़ेंगी इरजिई, इर, रॉ, रब्बिरहमहुमा, रब्बिर। आप देख रही हैं, चाहे हमजतुल वस्ल से पढ़ें या उसको ड्रॉप करते हुए पिछले लेटर से पढ़ें, हैवी ही होगा ये रॉ। क्यों, क्योंकि इससे पहले हमजतुल वस्ल आई हुई, रब्बिर, ठीक। इनिर तब तुम, इनिर, रॉ, ठीक। चलिए, ओ हमने मद अब शुरू होने, रॉ को जम करके हमने उधर पढ़ाया फिर ये पढ़ाया। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, रॉ सेकंड में किसी के कोई सवाल है? ये आता है लाम शमसी में, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको याद कर लीजिए बस, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग खुद कि लाम जो है वो, उसके बाद लाम आ रहा है तो हम लोग इसका लाम पढ़ रहे हैं या इसका वो। तो शद्दा से आप इसे याद रख सकती हैं, शद्दा लगा होता है तो उससे भी याद रहा जा सकता है। बाकी इंशाल्लाह। जी, कुछ मीटिंग मेरी अटकती अटकती चल रही है, आवाज अटक रही है क्या, कि टच मेरा स्लो चल रहा है? नहीं, आवाज क्लियर है मैम। अल्हम्दुलिल्लाह।
रॉ को रेके रॉ के रूल में किसी के कोई सवाल तो नहीं थे? तिलावत लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तुम्मा अमातहु फअक़बरह। मीम मुशद्दद। हुरूफ लसविया, हुरूफ लसविया 3 है, इनको किसी भी हाल में अब आप लोग सा या जा या तो जो नहीं कहेंगे, ठीक है? सोते में से भी कोई पूछे तो आप सुब्हान रब्बिल अज़ीम ही कहेंगी, अजीम नहीं कहेंगी, ठीक? तो अज़ीम व अज़मत ये बिल्कुल आदत डाल लें। तो उर्दू की वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाती है, बाकी कहीं भी आपका आए तो मामात मीम मुशद्दद, उसके पहले हुरूफ लसविया, हैवी, हाँ अच्छा पढ़ेंगी, फअक़बरह, बा रह, कौफ और रो बीच में, दोनों के बीच में बा साकिन, सॉरी साकिन के बारीक ध्यान रखना है कि कौफ को हैवी, रो को हैवी, लेकिन बा सीधा। तुम्मा इदा शाअ अंशरह, आपने हमजा की साउंड सुनी हो, शाअ अन, आ दोनों, आपको जितनी बार हमजा कहा जाए आ ऐसे कहेंगी आप, और आ नहीं कहेंगी, आवाज को हिलाना, सर को हिलाना, शान शान शरा नहीं है, शाअ अंशरह। आ की आवाज बहुत ही स्ट्रांग होती है, हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से को आपको बंद करके चिपका के बंद करना है, दोबारा खोलना है, आ। तो ये आ नहीं होता, आ होता है, ओके? कल्ला लम्मा यक़दि मा अमरह, यक़दि एक हरकत लेंगे और हैवी भी करेंगे। फलयंज़ुरिल वा, हुरूफ लसविया प्लस हैवी लेटर, नून भी हैवी हो जाएगा जबान की नोक के साथ साथ। फलयंज़ुरिल इंसानु इला तआमिह अन्ना सबबनल माअ सब्बा। माअ, ये मद बनते ही हमजा की वजह से, चाहे वाजिब हो चाहे जायज हो, तो आपको जब मद खींचे उसके बाद आवाज कट करके ही हमजा शुरू करनी होगी। माअ, ठीक? सब्बा, सब्बा नहीं, सब्बा, अलिफ मद्दा एंड में। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, एक चीज पूछनी थी, ये जो आयत में तो आमी थी, ये यहाँ पे जब मद होता है और वक्फ करना होता है तो उसका क्या रूल है? उसका ये रूल है कि ये दोनों दो आपके अलग अलग रूल थे कि हुरूफ मद्दा के बाद आपकी हमजा अगर आ जाएगी तो आप इसे मद्दे जायज करके पढ़ेंगी, तो अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगी तब तो ये रूल, यानी कि दो कॉम्बिनेशन, दो चीजें आपने प्लस करी हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन बन के आएगा, उसका रिजल्ट ये होगा। लेकिन जब तक दो चीजें आपकी प्लस होंगी ही नहीं, यानी आप इसे सेपरेट कर दें, तो कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं, और आप उसको क्या पढ़ेंगे, क़ामी, रुकने का रूल अदा करेंगी, कंटिन्यू करेंगी, तब आप बताएंगी कि यहाँ पर कभी कभी मद का निशान नहीं भी पड़ा होगा। और मेरा एक सवाल एग्जाम में जरूर आता है कि अगर आप इसको कंटिन्यू करें तो आप क्या करेंगी, हो सकता है यहाँ पे मद का निशान ना लगा होता, ठीक है? इंडिया के कई जगहों पे कुरान में ऐसा लगा है कि उन्होंने ये चीज नहीं डाली है, फिर भी अगर आप ऐसे पढ़ के बता देंगे कि मैं ऐसे पढ़ूंगी इला तआमिही अन्ना, मिही अन्ना, गलत हो जाएगा। तो आप खुद देखें, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाएगी तो आप मद्दे जायज करेंगी। हो सकता है यहाँ पर मिसप्रिंट होता, शीन के ऊपर मद नहीं लगा होता। हम आपसे पूछते हैं यहाँ पे कुछ रूल रह गया है, क्या रूल होगा? तो आप कहेंगे मद्दे वाजिब है, इसे चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, मुझे खींच के ही पढ़ना है 4 या 5 हरकत, क्योंकि शाह आ एक ही वर्ड है और हमजा आई हुई है हुरूफ मद्दा के बाद, तो इस हुरूफ मद्दा को मुझे मद्दे वाजिब में 4 या 5 हरकत बदल के खींचना है। तो जब तक रूल आपका एक जैसा ना हो, यानी दो चीजें एक साथ आ रही होंगी, तो आप उसे अप्लाई कीजिए। और दोनों चीजें सेपरेट हो गई हो, जैसे कि कभी कभी आप नून पे रुक रही हो, यहाँ पे नून साकिन अगर होता तो आप कहें अब मुझे इसको इख्फा इदगाम इक़लाब में से क्या करना होगा मैम? क्या जवाब है कि आप इसको नून साकिन पढ़िए, कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे सांस ले रही हैं।
لیکن اگر آپ کنٹینیو جائیں گی تو آپ آگے حمزہ آئی ہے، اس کا مطلب آپ اسے اظہار کریں گے. کب؟ جب آپ کنٹینیو جائیں تو دو چیزیں ملیں گی تبھی رول بنے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی رول ہو اور جی دونوں چیزیں الحمدللہ. سیپریٹ ہو جائیں تو وہ آپ سیپریٹ ہی دیکھیں گے. اس کو ایسے پڑھا کریں جیسے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آگے آنے والا کیا ہے. تو اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ اب آپ بتائیں ایسے کیسے پڑھیں گے؟ اِلَىٰ طَعَامِهِ. That's it. ٹھیک، جی الحمدللہ. اوکے. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں سے لیتے ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. سیدھا رہے گا رو ٹھیک. شققنا الشقق دونوں ہیوی اور قاف پہ قلقلہ. اس کو شقق بہت بڑا فتحہ جیسا نہیں لینا ہے، بہت کم لیا جاتا ہے قلقلہ، بس ساؤنڈ ہوتی ہے. ثم شققنا الارض شقا. ارض شقا ٹھیک. جو ہیوی ہے وہ ہیوی، جو سیدھا ہے وہ سیدھا. فانبتنا تاپہ ہم میم کا اقلاب آیا ہے، کھینچیں گے. فأنبتنا فيها حبا جوڑ دیں گی. وعنبا وقضبا. قضبا میں کیا دھیان رکھیں گی؟ بہت کی آواز میں ساؤنڈ بالکل نہیں ہوگا. قضبا نہیں، قضبا. قضبا بہت کو پکڑے رہیے گا، پھر با بولنا ہے. قضبا ٹھیک. وزیتونا ونخلا ادغام ناقص ہے، وہاں پہ کوئی نشان نہیں لگا ہے، پھر بھی آپ مرج کریں گی کیونکہ اس سے پہلے تنوین ہے، اور ناقص مرج کریں گی یعنی نون غنہ کی آواز باقی رکھیں گی. نخلا خو ہیوی، نا اور لا سیدھا. وحدائق غلبا. غ ہیوی، شاہ پہ زور دیں گی. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ولی جیسا نہیں، نہ وا نہ لے، ولی. واو ہوٹ بول سے اور لی بالکل باریک. وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. جا کا مد 4 یا 5 حرکت، لیکن صوخہ 6 حرکت. تو دونوں مد ایک ساتھ ہیں. آپ کی ڈفرنس کلیئر سنائی دینی چاہیے کہ پہلے والا 4 دوسرا والا 6 ہے، پہلے والا 5 دوسرا والا 6 ہے، تو دوسرا والا 6 بڑا ہوگا. تو کلیئر سنائی دینا چاہیے. پھر سے میرا سنیں، دیکھیں فرق لگ رہا ہے. وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ اوپر سے نور بھی ہوگا کیونکہ خا ہے، اس پہ شدہ لگا. ٹھیک، دھیان رکھنا ہے، نشان لگا لیں یا جیسے بھی. یوم یفر المرء من اخیہ. یفر فی باریک، را ہیوی. یوم یفر المرء من اخیہ. مرء من ٹھیک. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صاحی پہ دھیان رکھنا ہے، صاد سیٹی کے ساتھ ہیوی، ہا حلق کے بیچ کے حصے سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنیہ. غین کی آواز چلے گی، تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے گا اسے. یہاں پر کیا لگایا جائے گا حمزۃ الوصل میں؟ اگر یہاں آپ پر کہیں کسرہ. کسرہ لگے گا، کسرہ. ہاں جی، سب نے بتا لیا. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. آگے بڑھتے ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ. جہاں جہاں پہ غنہ آ رہے ہیں اچھا ٹائم دیجیے گا. ضاحکۃ مستبشرہ. میم کے لیے تو ہوٹ بولتے، سین کے لیے بالکل سیدھے، سیٹی کی آواز ہوٹ سیدھے، بالکل آواز اچھی کلیئر آئے. مس نہیں، مس. ٹھیک. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. غَبَرَةٌ
हैवी को हैवी, बारीक को बारीक। तरहकुहा क़तरह, क़तरह, बार बार ग़बरा, क़तरह, तौरा नहीं होगा, ता। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरह। देखें ये सऊदी कुरान, वो कहते हैं जो लेटर नहीं पढ़ना है हर लेटर पर वो ये निशानी डालते हैं। कौन सी? ये वाला सर्किल। जो नहीं पढ़ना है उसके ऊपर ऐसा एक सर्किल होता है, चाहे अलिफ हो, चाहे वाव हो, चाहे या हो। जो नहीं पढ़ना है, कभी भी नहीं पढ़ना है, सिवाय लाम शमसी के, क्योंकि वो उसका चैप्टर अलग से है। जैसे कि ये है, अब वो कहें कि ये भी तो कभी नहीं पढ़ना था, इस पे क्यों नहीं लगा है, तो इसका रूल है, बता दिया उन्होंने, ठीक है। तो बाकी जो अलिफ वाव और या सिर्फ ऐसे लेटर हैं जो कि स्किप करे जाते हैं, लिखे तो होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। उनका कोई रूल नहीं है कि भाई आगे लेटर आ गया था, शमसी बन रहा है, ये अल के साथ है, वगैरह वगैरह, कोई रूल नहीं है। इस वजह से इसको साइन डाला है कि ये लिखे तो होते हैं, पढ़े नहीं जाते। यानी साइलेंट लेटर जैसे नाइफ, नो, ये सब इंग्लिश के हैं, तो उसी तरह ये भी है। मैम ये जो शककनल अरबा जो है, इसमें अभी आप जो हमजतुल वस्ल का और रा का रूल बता रही थी वही है ना इसमें? हमजतुल वस्ल है कहाँ और रा साकिन है। कहाँ पर? वर्ड फिर से बोले, कहाँ पर? इमरी, तरहकुहा, ये नहीं, इसमें भी रॉ साकिन से पहले। जी, किसी और ने सवाल सुना उनका? क्योंकि अब आवाज नहीं आ रही उनकी। कहाँ पर क्या सवाल था उनका? जी मैम, मैम ये मेरा माइक बंद हो गया था, सॉरी। ये मैं कह रही हूँ हाँ वो है ना सुमन शककनल अरबा जो बन रहा है, अरबा में वो पूछ रहे हो कि आप जो अभी बता रही थी हाँ जी। हमजतुल वस्ल हो और रा साकिन हो और फिर हैवी लेटर हो, तो ये वही बन रहा है ना? पता नहीं नहीं लगा हुआ है। नहीं जी, ये अरबा जो है, ये कमरी शमसी में से आप देखेंगी। लेकिन हमजतुल वस्ल, ये रॉ से पहले हमजतुल वस्ल आप कहेंगी तो नहीं, हमजतुल वस्ल तो ऐसा होता है या फिर सादा होता है अगर अरबी कुरान, इंडिया का कुरान। ये जो जी हमजा लिखी हुई है, ये हमजा ही है, हमजा जिसको हम लोगों ने हमजा पढ़ा है। असल नाम इसका हमजतुल कता होता है, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या सीखा है कि अगर ऐसे ऐसे और ऐसे, ये कुरान के ऊपर नहीं लिखना चाहिए हमें। ओके, तो ये अगर ऐसे है कि ऐसे, ये इंडिया के जो होते हैं उसके ऊपर ये जो ये लिखे हुए हैं, ये सारे हमजा हम लोगों ने सीखे। उसी तरह अरबी जी कुरान में वो हमजा जब होती है तो हमजा लिख देते हैं, कोई डाउट नहीं रहता है कि पता नहीं हमजातुल वस्ल है, कि पता नहीं हमजा है, कि पता नहीं मद्दा है, कि पता नहीं स्किप वाला है। सब चीजों पे उनके जी निशान है। और अरबी वाले में स्किप वाला है तो जी आप ऐसा सर्किल देखेंगी, और हमजा अगर है तो वो आप ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ देखेंगी। और अगर मद्दा है फिर तभी वो सिर्फ सादा लिखा होता है, जैसे कि ये आमी अलिफ मद्दा, बस। जी तो बाकी सऊदी इंडिया के कुरान में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये जो है कि हमजतुल वस्ल नहीं है रॉ साकिन से पहले, ये हमजा है, हमजा। अगर जी हमजतुल वस्ल होती या तो सादा होता इंडिया के कुरान में, और सऊदी कुरान में तो कोई डाउट नहीं है कि हमजतुल वस्ल है कि नहीं है। आप बताइए इन दोनों में से हमजतुल वस्ल कौन सी है? ये लिखा है अल अर्बु, इसमें से 2 बार अलिफ आया है, इसमें से हमजतुल वस्ल कौन सी है? ये मैम फर्स्ट हमजतुल वस्ल अल से पहले जिसपे जो सौद का हेड लगा हुआ है वो हमजतुल वस्ल जिसपे है। सौद का हेड बना है, पहली वाली ना, ये वाली। जी और ये क्या जी है? ये सिर्फ हमजा है। जी ओके, चलो। मैम ये जो आपने लास्ट आयत में उलाई का बताए, तो वो हम्म, हमजा पे दम्मा के साथ एक ही हरकत पढ़ेंगे, वाव जो है उसको साइलेंट रखना है, हाँ जी, उसका मद नहीं उलाइका, बनेगा। उलाइका नहीं, उलाइका, हमजा दम्मा उ, लाम फता अलिफ मत ला, उला, ऐसे। जी जी। जी बस, और कोई सवाल? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।